Good morning, students in Shivaji Group of Institution online classes. And as we already covered the topic photoelectric effect in audio lectures and also in the video lectures. So, students, now we will start the numerical problems in today's lecture. And I am providing you a PDF file. So, you can see the problems which I am going to discuss in your PDF. So, let's start with the problem number first. So, it is what? Calculate the energy of a photon having the wavelength 4000 angstrom. So you are seeing in your PDF that it is problem number first. So what is the problem number first here? Here you have given the wavelength of the light, the wavelength of the photon, which is lambda equal to 4000 angstrom. Here lambda is equal to 4000 angstrom, and you have to find the energy. As I told you, the formula of the energy of a photon is E equal to h nu. You know, E is equal to h nu. This is not V, this is nu, and here nu is frequency of the light or frequency of the photon, and h is Planck constant, and E is the energy of a photon. And you also know that nu is what? Nu is equal to c by lambda. Nu equal to c by lambda, where c is velocity of light and lambda is wavelength of the light. So we are putting here sc by lambda. So it becomes sc by lambda. And students, I have already told in the audio lecture that this sc, we will not solve it again and again. Here we have another one form of this formula which you have to apply in the numerical problems, and that is E equal to 12375 upon lambda, and this lambda should be must be in angstrom. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में ही होना चाहिए, अदरवाइज दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क. ठीक है, और ये जो आपकी पूरी वैल्यू है एनर्जी की, इट विल नॉट कम इन जूल, इट विल कम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दीज टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, अदरवाइज यू विल get the wrong answer and you will get in trouble. So I think you are getting my point here. So E equal to 12375 over lambda in angstrom, and this would come in electron volt. So now put the value simply here. So what you would get 12375 upon lambda. Lambda is 4000, and if you solve it, just cancel with 4. 4 3s are 12, 4 3s are 12, 0, 4 9 ja 36, 36, 4 3 ja 12, 4 7 ja and 4 5 ja अपॉन में 1000 ही आ जाएगा आपका अपॉन में 1000 मीन्स पॉइंट को आप मूव कराइए लेफ्ट साइड 3 टाइम्स, तो इट वुड बिकम 3.09, और यूनिट क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हियर. एंड इफ यू राइट इन द 1 decimal point up to 1 decimal point, though it would be approximated as 3.1 electron volt. This is your final answer, energy of a photon in electron volt. So I think you have got this problem. And students, also here, if you want this answer in the joule in SI unit, so it would be very easy if you do this in this way, because you know that in 1 electron volt it is simply 1.6 into 10 power minus 19 joule. So just by multiplying this numerical value, you can convert it into the joule. So that is the problem number first. Now we are going to discuss the problem number 7. So see in your PDF what is the problem number 7. Read it carefully, think it carefully, and then if you are not getting the problem, then watch my video and get the solution. So this is the problem number 7 here. What is the problem number 7? 5% of energy of a monochromatic light source of wavelength 5600 angstrom is converted into light. If the power of the source is 100 watt, how many light photon will be emitted per second? So this is the problem number 7. Here what is given, I am writing it here simply. So students, light source wavelength is lambda equal to 5600 angstrom. And what about energy? Energy, here the source is radiating energy, power is given 100 watt, and this 100 watt 5% of energy is equal to light energy, is equal to light energy.
E total equal to light energy. What it means, what I am writing here. So यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको जो न्यूमेरिकल दिया है इसमें आपको सिंपली कह रहा है कि एक सोर्स है जो कि लाइट को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, बल्ब का। तो बल्ब को जब आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो बल्ब से क्या आपको किसको कन्वर्ट करता है, उसको लाइट एनर्जी में। अगर हम लोग प्रैक्टिकली कंसेप्ट की बात करें, क्या कोई भी सोर्स जो एनर्जी को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्या टोटली एनर्जी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? आई मीन अगर हम लोग 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उस कन्वर्टर को, तो क्या वो दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, क्या वो भी 100 जूल पूरी ही कन्वर्ट कर देता है? नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ एनर्जी, इट मींस सपोज बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा आपका कन्वर्टर है, तो 80% गुड इफिशियंसी है उसकी, तो 80% 90% वो क्या करेगा, लाइट को एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तब भी उसमें कुछ ना कुछ परसेंट की एरर होगी, यानी वो कुछ ना कुछ परसेंट एनर्जी को अनदर फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, जो हम लोगों को डिजायर जिसकी नहीं होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी। और हम लोग कहते हैं कि एनर्जी इतने परसेंट क्या होगी, लॉस। एक्चुअली एनर्जी लॉस नहीं होती है स्टूडेंट्स, एनर्जी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे फैन की अगर हम बात करें, तो फैन जितनी एनर्जी पावर कंज्यूम करता है, पावर का सिंपल मतलब क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, ये पावर होती है। तो फैन क्या करता है कि फैन उतनी एनर्जी 1 सेकंड में जो कंज्यूम कर रहा है, उसमें वो कुछ एनर्जी जो है, मैक्सिमम जो एनर्जी है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, और कुछ एनर्जी बाकी अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही है। जैसे साउंड एनर्जी, साउंड आती है तो साउंड एनर्जी में, उसके बाद फैन आपका हीट भी हो जाता है तो आपकी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है, थर्मल एनर्जी में। सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर। सो यहाँ पर आपका 100 वॉट जो सोर्स है, ये तो वो पूरी एनर्जी ले रहा है, उसको इनपुट दिया जा रहा है, इतनी एनर्जी वो ले रहा है, बट इसका सिर्फ 5% एनर्जी वो क्या कर रहा है, लाइट के फॉर्म में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। चलिए, तो यहां पर निकाल लेते हैं लाइट एनर्जी ऑफ द सोर्स। लाइट एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। तो लाइट एनर्जी क्या है, 5%, 5% किसका, 100 वॉट का। तो ये आपका आ जाएगा 5/100 यानी 5 वॉट। कितना आ गया आपका, 5 वॉट। It means only 5 watt means 5 joule in 1 second. Only 5 joule energy in 1 second is converted into light energy. So here what is our problem? Our problem is how many light photons will be emitted in 1 second. चलिए निकालते हैं। तो ये आपकी क्या है, लाइट की जो वेवलेंथ है जो एमिट हो रही है, इससे हम ये निकालेंगे। पहले इसको आप ऐसे समझिए कि हम लोग को अब क्या निकालना है, हमने तो ये निकाल लिया कितनी एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उस सोर्स में, ठीक है। अब जो एनर्जी लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उसी की हमें क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा है, 5 जूल इन 1 सेकेंड, 5 जूल इन 1 सेकेंड, ठीक है। इट मीन्स 5 जूल एनर्जी रेडिएट हो रही है लाइट के फॉर्म में 1 सेकेंड में, ठीक है। अब जो 5 जूल एनर्जी रेडिएट हो रही है वो एनर्जी कौन कैरी करके ले जा रहा है, यानी फोटॉन्स। और एक फोटॉन्स नहीं होंगे, बहुत सारे फोटॉन्स होंगे। और आपको पता है फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, और जो भी फोटॉन्स वहां पे रेडिएट हो रहे हैं, हर एक फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, सेम। बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम आई थिंक इट इज गिवन, हाँ देखिए ध्यान से, एक पॉइंट आपको गिवन है, मोनोक्रोमेटिक। देखिए ध्यान से, मोनोक्रोमेटिक वर्ड का मतलब होता है, आपको बता चुका हूं मैं, सिंगल कलर की लाइट। मोनो मीन सिंगल कलर, यानी सिंगल कलर का मतलब वेवलेंथ हर एक फोटॉन की क्या है, सेम है। मल्टीपल कलर की लाइट नहीं है, यहाँ पे जितने भी फोटॉन है सबकी वेवलेंथ सेम है, जो भी एमिट हो रहे हैं उस लाइट सोर्स से। इट मींस यहाँ पर हर एक फोटॉन इक्वल एनर्जी क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि ये 5 जूल एनर्जी कितने फोटॉन्स के थ्रू क्या हो रही है, कैरी करके जा रही है, ठीक, 1 सेकंड में रेडिएट हो रही है। तो पहले आप इससे ये निकाल लीजिए लैम्डा से एक फोटॉन कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है। चलिए निकाल लेते हैं। सिंपली आपको पता है E इक्वल टू 12375 अपॉन में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ऑलरेडी इट इज एंगस्ट्रॉम, तो वैल्यू पुट करते हैं 12375 अपॉन में 5600। तो ये वैल्यू आपकी स्टूडेंट किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। गलती मत करिएगा, यहां पर देखिए ये जूल में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इट मींस यू हैव टू कन्वर्ट इट इन जूल। आपको यूनिट भी ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम इसीलिए क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, और आप कहते हैं सर फॉर्मूला सही लगाया है, आंसर क्यों नहीं आया मेरा, ठीक है। बाद में आप यही सोच के ही परेशान होते रहते हैं। चलिए थोड़ा सा मुझे रफ करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो रफ करता हूँ। चलिए, अच्छा ये एनर्जी ज्यादा होगी या ये एनर्जी, आप खुद सोचिए। दिस इज द एनर्जी ऑफ अ 1 फोटॉन एंड दिस इज द एनर्जी emitted by the
लाइट सोर्स इन 1 सेकेंड। तो लाइट सोर्स एनर्जी तो रेडिएट कर रहा है पूरी। अब ये एक फोटोन की, इसमें तो बहुत सारे फोटोन, यानी इट इज ग्रेटर एंड इट इज लेसर। सो इट मींस इफ आई assume that n photons is emitting in 1 second, so what is the total energy carried by the n photons? This is the energy carried by the one photon, or there are n number of photons emitted in 1 second. So we have to multiply these two things, 1 2 3 7 5 upon 5 6 00 into n. So this is the energy of one photon, this is the number of photon. It means this is the total energy radiated, light energy radiated in 1 second. और हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, इक्वल टू 5 जूल, इक्वल टू 5। इसको आप सिंपली सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपकी आएगी, ये आपका काम है, सॉल्व करिए इसको मैथ। इसके वैल्यू आपकी आएगी, आप सॉल्व करिएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 19। This is your answer, 1.4 into 10 to the power 19. It means these photons are emitted in 1 second, carrying 5 joule energy in 1 second. So I think you have got this problem, number 7. Now we are going to discuss the problem number 8. I will not solve it completely. I am just giving some important point here so that you doesn't make any mistake here. So what it is energy received by the earth from the sun is this 1.4 into 10 to the power 3 joule per meter square second. If the average wavelength of the sunlight is 5500 angstrom, here you have note one point here clearly that there is one important part is average wavelength. So average wavelength क्यों बोल रहा है सन के केस में? हर जगह wavelength रहती है, because you know sun is radiating all the light of all the frequencies, and if there is multiple frequencies, then you know we have required single frequencies, and for that purpose we have one term in mathematics, that is average. That's why here average wavelength of sunlight is given to you in numerical problems. So what is this? Lambda equal to 5500 एंगस्ट्रॉम। देखिए स्टूडेंट, एक मैथमेटिक्स सॉल्व करना अलग चीज है, ये आपका क्या है, ये आपकी फिजिक्स है। आप कोई भी पॉइंट कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसको भी आप ध्यान रखिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको फॉर्मूले से मतलब है और आप उसको सॉल्व करना आपने स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल भी समझ नहीं रहे। तो लैम्डा इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है, 500 एंगस्ट्रॉम है। एनर्जी कितनी रेडिएट कर रही है, सन से कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है? एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, ये सन मैं लिख रहा हूं, ये आपका है 1.4 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, अब यहां से इस लैम्डा से ये जो एवरेज वेवलेंथ है, यहां से आप एनर्जी कैरिड बाय सिंगल फोटोन निकाल सकते हैं। तो वो आपका आ जाएगा एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ईपी हमने लिख दिया है शॉर्ट में, इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज इन एंगस्ट्रॉम, सो दिस विल बिकम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यूनिट डिफरेंट है और कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में। यहाँ पर ये जो एनर्जी आपको दी है ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड में गिवन है, और आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको करना क्या है, इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम में आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -4, और 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -1। इट मीन्स 1.4 इंटू 10 की पावर -1 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ये वैल्यू आपकी यहां पर हो जाएगी। ये आपकी एनर्जी रेडिएट हो रही है सन के थ्रू, और एक फोटोन की एनर्जी आप इससे निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू पुट करके। उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स है जिसमें फाइंड करने, सेम प्रॉब्लम है। तो एक फोटोन की इतनी एनर्जी, तो एन फोटोन की, इसका इससे मल्टी कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12375 अपॉन लैम्डा आपका कितना है 5500। नंबर ऑफ फोटॉन्स लेट कर दिए एन। दिस इज द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इन 1 सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर। So this is also equal to what here? देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये है,
हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। यहाँ पर आपसे ये दे रखी है ऑलरेडी आपको, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। ये आपका किसमें है, जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। यहां पर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको आपको किसमें, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर मल्टी कर रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। दिस इज इन जूल, दिस इज अ नंबर, सो दिस इज ऑल इन जूल, दिस इज इन जूल, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये वैल्यू से ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा कि कितने फोटॉन्स आपके पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या हो रहे हैं, यहाँ पर अर्थ पे रिसीव हो रहे हैं। तो आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है इस वैल्यू को, और यहाँ पर n की वैल्यू जो सॉल्व होकर आ जाएगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा 3.89 इंटू 10⁻70। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर इसमें कुछ नहीं था स्टूडेंट, बस आपको क्या करना था, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, मीटर स्क्वायर को। तो आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर टू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मल्टी किया 10⁻4 का, यहाँ पर नीचे ये ऊपर गया आपका न्यूमरेटर में, तो 10 की पावर बन गया -4, 3 ऑलरेडी था, 3 - 4 आपका हो गया -1। तो 1.4 इंटू 10⁻⁻1 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ये पूरा हम लोगों ने इसको क्या कर लिया है, सॉल्व किया है। उसके बाद दिस इज द एनर्जी ऑफ द 1 फोटोन, इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टी कर दिया। तो दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, और ये क्या है आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो दिस इज द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, बाय द फोटोन। और ये आपका क्या है, ये सन के थ्रू जो एनर्जी आ रही है ऑलरेडी आपको पता थी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कितनी एनर्जी सन अर्थ क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। तो सॉल्व किया तो इतने फोटॉन्स, आंसर आएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। इट मींस दिस 3.89 into 10⁻17 photons are received by the earth in 1 second in 1 centimeter square area. Okay, so you got this problem. Now we would solve our next problem, which is the problem number 11. Let's see in your PDF what is the problem number 11. What is the problem number 11? Work function of the sodium. यहाँ पे work function आपको given है. You know that work function is what? It is the minimum energy required for the electron to emit from the metallic surface. So this is problem number 2.3 electron volt. And you also know the formula of work function is W, which is in the form of energy. So this is also h nu. ये भी क्या होता है, h nu होता है आपका, और h nu नहीं, यहाँ पे h nu not, because it is the minimum frequency, that is threshold frequency. So we are making it special nu naught. So or you know also know that this is Sc by lambda naught, और Sc की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला 12375 upon lambda naught. So here it is threshold wavelength, this is threshold frequency, this is in angstrom as you know already, and this is in electron volt. So this is the formula of work function, and in this numerical you have to find out the maximum wavelength, and you know the maximum wavelength for the emission of the electron from metallic surface is called what? Threshold wavelength. So you have to find out the lambda naught. You have given W, so just put the value here 2.3 and solve this, and 2.3 equal to 12375 upon lambda naught. देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान है, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज आल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो यू हैव नो प्रॉब्लम, you don't require to convert this electron volt value in joule, because this formula is already in electron volt. So simply just solve it. Lambda naught equal to 12375 upon 2.3. ठीक है, यहां पर आपको इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया है वो भी किसमें होता है, एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 538 10 की पावर -9 आएगा, और इसी को हम लोग नैनोमीटर बोलते हैं, -9, तो ये आपका हो जाएगा नैनोमीटर, nm, स्मॉल nm, नैनोमीटर। ठीक है, इसको आप एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते थे यहाँ पर, तो ये आप यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते थे, तो एंगस्ट्रॉम में 5380 एंगस्ट्रॉम भी आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं। चलिए, सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 11। Now we are going to solve our next problem, which is problem number 14.
So it is very important problem student here. Problem number 14. Let's start problem number 14. A source of 5 watt is emitting the light. यहाँ पर अगेन वही है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट कंसेप्ट है. यहाँ पे कह रहा है 5 वॉट पावर आपको गिवन है, 5 वॉट, और आप पावर का मतलब अच्छे से जान चुके हैं, मीन्स 5 जूल इन 1 सेकेंड. 5 वॉट मीन्स 5 जूल इन 1 सेकेंड. अ सोर्स इज एमिटिंग 5 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड. अच्छा, ये आप सोचिए, यहाँ पर आपको गिवन तो है नहीं कि किस डायरेक्शन में वो सोर्स एनर्जी को रेडिएट कर रहा है. सो आप किस डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे? You have to take it general. It means energy is radiated in all the direction, and in all the direction it means if you are calculating energy at a distance fixed from the fixed distance from the source, then it would be a spherical surface from where all the energies are reaching at the same time. So here the point is this, that 5 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड. और इसमें आगे क्या कह रहा है कि वेवलेंथ जो आपको गिवन है वो गिवन है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम. ये आपको वेवलेंथ गिवन है. अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, इसमें कह रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सोर्स वेयर पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. देखिए, मान लीजिए ये सोर्स है, फिगर से समझिए, ये एक सोर्स है, ये एनर्जी को रेडिएट कर रहा है. क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है लाइट की. फोटॉन्स यहां से निकल रहे हैं. अब फोटॉन्स यहां से बोल रहा है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, यहां से 5 मीटर, मान लीजिए ये है 5 मीटर, ठीक है. तो 5 मीटर इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. तो 5 मीटर की डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है? सबसे पहले तो आपको यहां पे निकालना है फोटॉन्स कितने क्या हो रहे हैं पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्या हो रहा है? रिसीव हो रहे हैं. तो इसके लिए आप समझिए, यहां पर एक सरफेस बनेगी. 5 मीटर स्क्वायर यहां से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यहां से एक सरफेस क्रिएट होगी, और वो सरफेस आपकी स्फेरिकल होगी. जैसे ये यहाँ पर एक आपका बल्ब जल रहा है, बल्ब एनर्जी रेडिएट करता है तो इक्वली ऑल डायरेक्शन में रेडिएट करता है. तो ये आपका बल्ब है, ऑल डायरेक्शन में यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? लाइट रेडिएट हो रही है. तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर मतलब आप देखेंगे तो एक बड़ा सा क्या बनेगा? 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आपका बनेगा स्फीयर, ठीक है. और उस स्फीयर के हर एक पार्ट पर इक्वल एनर्जी इक्वल टाइम पे क्या होगी? रिसीव होगी, ठीक है. हमें एनर्जी निकालनी है 1 मीटर स्क्वायर. तो आपको क्या करना है? इस सरफेस का, इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया निकालना है. और स्फेरिकल सरफेस का एरिया आपका होता है, स्फेयर का एरिया आपका होता है एरिया ऑफ स्फेयर आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर. और आर यहाँ पे 5 है, तो 4 पाई 5 का स्क्वायर यानी 25. दिस इज 25 4 जा 100 पाई. दिस इज द मीटर है, यहाँ पर देख लीजिए मीटर में है, मीटर, हाँ ठीक है. तो ये आपका मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द सरफेस वेयर दिस 5 जूल एनर्जी इज रिसीव्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है. ये एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है?